Good morning students, welcome to your English class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. Students, first of all we will discuss our password, that is spread. I have picked this word from our English lesson The Fly. So it has meanings like to expand, to disperse, to stretch out. हिंदी में इसका अर्थ हो सकता है फैलाव. So now about using this word to frame sentences, I want to tell you that the bird spread its wings. Bird ने अपने पंख फैलाए. I like to spread butter on my toast. मुझे अपने टोस्ट पर बटर लगाना पसंद है. The fire quickly spread. आग है वो जल्दी से फैल गई. The virus of corona can be spread by contact. जो कोरोना का वायरस है वो कांटेक्ट से फैल सकता है. So that was about our password. What we are going to do in our English class today, I want to tell you. First of all, we will revise the test matter of today's test, that is make sentences of poem a house. Now then we will do bookwork exercise that are on page number 21. Exercise are C, D and E. And then what we are going to do, we will discuss the homework that I am going to give you during this week. And after that, what we are going to do, after your EVS class is over, then you have to do your English test at 11:30 AM. So first of all, we will do revision for our English test. Yes students, this is our homework discussion that I am going to do. You know, every Monday we discuss the homework that was given to you during previous week. So last week I gave you the homework that I am going to take your test of make sentences of poem a house today itself. So we are going to revise it again. English test revision. This is the test matter. Poem a house, make sentences. So first word that is given to us, nest. Nest means घोंसला. A bird makes the nest. एक पक्षी घोंसला बनाता है. Next is at number 2, sparrow. Sparrow क्या है? चिड़िया. A sparrow is flying in the sky. एक चिड़िया आकाश में या आसमान में उड़ रही है. You can also write it in a simple way. This is a sparrow or a sparrow is flying only. ये भी लिख सकते हैं आप. You can frame your own sentences, but they should be right. Next is hive. Hive क्या है? जो बी का जो घर होता है वो अलग तरह का घर होता है जो बी बनाती है. A hive is a house for a bee. बी के लिए hive ही उसका घर है. Next is bunny. A bunny is a small rabbit. bunny एक छोटा rabbit होता है. At number 5, chicks. Chicks क्या होते हैं? bird के baby. There are 2 chicks in the nest. घोंसले में 2 chicks हैं. Last one is house. House आपको पता है students? My house is near the park. मेरा घर पार्क के पास है. या this is my house. My house is large. My house is beautiful. You can also frame sentences like that. Students, I want to tell you about the test. I will give you 4 words. आपको मैं 4 words दूंगी टेस्ट के लिए. That test will be taken after 11:30. तो after 11:30 when your EVS class is over, then I will take your test students. So where you have to do this test, bring your, or you can take out your rough copy, not in English reader copy. आपको English reader copy में टेस्ट नहीं करना है. You can take any page. आप एक पेज भी ले सकते हैं या आप आपके पास कोई रफ कॉपी हो उसमें आप टेस्ट करेंगे, not in your English reader copy. So all the best for your test. Now we will do bookwork exercise of our running chapter, that is The Fly. Yes students, as you know we are doing bookwork of our lesson number 2, The Fly. So in our previous class we had an exercise A and exercise B of this lesson. Now today we will do exercise C, D and E of the lesson The Fly. Before we start students, I want to tell you
that I am going to give you a recap of the lesson. So this lesson is about a fly which forgets its name. ये लेसन एक फ्लाई के बारे में है जो अपना नाम भूल जाती है. देन अपना नाम याद दिलाने के लिए या पूछने के लिए वो बहुत सारे एनिमल्स के पास जाती है या और कुछ नेचर की चीज़ों के पास जाती है. वो काफ के पास जाती है, वो काव के पास जाती है, विमेन के पास जाती है, रिवर वाटर के पास जाती है, देन ट्री के पास जाती है, फिर देन फाइनली एक बर्ड के पास जाती है और बर्ड से पूछती है कि डू यू नो माई नेम. तो बर्ड क्या होता है, वो कहता है आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, आई नो ओनली टू फ्लाई, मैं तो बस उड़ना जानता हूँ. और वो फ्लाई वर्ड सुनते ही फ्लाई को अपना नाम याद आ जाता है. सो दिस लेसन इज अबाउट द फ्लाई, उस फ्लाई के बारे में लेसन है. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स, यहाँ 2 बार है फ्लाई. बर्ड ने बोला आई वॉन्ट ओनली नो हाउ टू फ्लाई, मैं सिर्फ उड़ना जानता हूँ. तो जो बर्ड ने फ्लाई बोला है वो डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है, उसका मतलब है उड़ना. और जो फ्लाई है जो अपना नाम भूल जाती है दैट इज़ अ नाउन, वो नाउन है, वो उस इंसेक्ट का नेम है. सो इसी तरह से बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग भी सेम होता है या थोड़ी मिलती जुलती होती है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन भी लगभग मिलता जुलता होता है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग, सो दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती है या कई बार सेम भी होती है बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं. सो आवर एक्सरसाइज डी इज अबाउट होमोफोन्स. नाउ before we start doing today's classwork, I want to tell you that we are going to start it with exercise C. You have to write classwork here like that I have written here, today's date here. Now we are going to do this exercise. Student, this is an oral exercise, ये आपको लिखनी नहीं है. We will simply discuss this exercise, हम इसको डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं aloud. Aloud means जोर से. So here some words are given to us, we have to read these words aloud. हमें इनको aloud रीड करना है, जोर से रीड करना है. ये किसी तरह के वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स में ER है और कुछ वर्ड्स में EA है. सो द फर्स्ट लाइन या इसी तरह से जो जा रही है वहाँ ER वाले वर्ड्स हैं और जो सेकेंड लाइन है उसमें EA वाले वर्ड्स हैं. सो आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आपको ट्रांसलेट भी करूँगी बट I am going to read it first. Teacher, teacher, driver, farmer, carpenter, singer. ये ER वाले वर्ड्स हैं. Here you can see इनमें प्रोफेशंस के नेम दिए गए हैं. टीचर एज यू नो वेरी वेल, अध्यापक. ड्राइवर जो ड्राइव करता है, फार्मर किसान. कारपेंटर जो फर्नीचर बनाता है, लकड़ी का काम करता है. सिंगर जो गाना गाता है. सो हेयर यू कैन सी ER words written with blue color ink, वो blue color ink से लिखे गए हैं. Teacher, you have to read aloud with me, along with me, you can say like that. Teacher, driver, farmer, carpenter, singer. Next, EA words. Beak, beak means चोंच, जो बर्ड की बीक होती है. Read, रीड इज अ डूइंग वर्ड जिसका मतलब है पढ़ना. बीड, बीड क्या होता है, मोती या मोती की जैसा कुछ होता है जिसको माला में या धागे में पिरोते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. हम लोग कुछ बनाते हैं एक्टिविटी या कुछ आर्टिकल बनाते हैं. हीट, हीट मतलब गर्मी. सीट मतलब बैठने की जगह. लीप, अ लॉन्ग जंप, यू कैन सी लाइक दैट, एक बड़ी सी जंप या झपटा मारना. सो I am going to repeat it. Beak, read, bead, heat, seat, leap. So these are the familiar words. ये हमें मालूम है ऑलरेडी, ये वर्ड्स हम इनसे फेमिलियर हैं. सो दिस एक्सरसाइज वाज अबाउट रीडिंग दीज वर्ड्स अलाउड. सो यहाँ पर क्या थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन था, ER वर्ड्स और EA वर्ड्स. Now our next exercise is exercise D. So students, I was talking about homophones. मैं आपको homophones के बारे में बता रही थी कि homophones क्या होते हैं.
कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट मीनिंग होती है, स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। हम उन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हम उन वर्ड्स को बोलते हैं तो लगता है कि सेम ही होगा, लेकिन जब हम उनकी स्पेलिंग देखते हैं या उस सेंटेंस को देखते हैं जहाँ वो वर्ड यूज़ किए गए हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सा वर्ड आना था। सो लेट अस स्टार्ट. It is the example that is given to us. Dash morning a tiny animal forgot its name. एक सुबह एक छोटा एनिमल अपना नाम भूल गया. Here two words are given. Won, won. तो won मतलब होता है जो जीत गया किसी भी गेम में या और ये वन है एक. सो व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट वर्ड? हमने सेंटेंस को देखा तो वॉन मॉर्निंग नहीं आएगा. द राइट आंसर विल बी वन मॉर्निंग. एक सुबह एक छोटा एनिमल अपना नाम भूल गया. सो वॉन एंड वन थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, बट देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट और उनका मीनिंग भी डिफरेंट है. नेक्स्ट इज डैश इज टुडेज न्यूज़पेपर. आज का न्यूज़पेपर है अखबार. हेयर, हियर. हेयर मतलब यहाँ, हियर मतलब सुनना. सो यू कैन क्लियरली नो, आप क्लियरली जान सकते हैं व्हाट विल बी द राइट वर्ड. हेयर मतलब यहाँ सुबह का अखबार है या सुनो. हियर मतलब सुनना, सुनो सुबह का अखबार है. तो व्हाट विल बी द राइट वर्ड? हेयर. सो आई हैव रिटन इट हेयर. यहाँ पर, यहाँ सुबह का न्यूज़पेपर है. द नेक्स्ट वर्ड्स दैट आर गिवन टू अस, 8 और 8. ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट देयर स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट. ये 8 क्या है? 8 जो हम न्यूमरल्स में लेते हैं. ये क्या है? ईट का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म. ईट, एट, ईटन जो होती है सेकंड फॉर्म. 8 मतलब खाया. सो 8 ये है 8 नंबर 8 वाला 8 एंड दिस इज खाया. सो वी विल रीड द सेंटेंस. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. मैं साल का हूँ या साल की हूँ. तो खाया वर्ड वाला आएगा 8 या 8 दिस वन. This one will be appropriate. So we will write here 8. Next is at number 4. My favorite color is dash. Blue और blue. Blue and blue. Blue क्या होता है? कलर का नेम जो नीला होता है. और blue क्या होता है? blow, blew, blown. wind जो एक doing word है. blow मतलब बह जाना, उड़ जाना. blue मतलब उड़ गया या बह गया. So माई फेवरेट कलर इज डैश. मेरा जो फेवरेट रंग है वो क्या होगा? ब्लू. सो हमें सेंटेंस को कंसिडर करना है स्टूडेंट्स, ताकि हम अप्रोप्रिएट वर्ड फिल कर सकें. द डैश इज ब्लू. सी और सी. सी क्या है? देखना. और ये सी क्या है? समुद्र होता है जिसको सागर बोलते हैं. व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट वर्ड? सी. जो सी है वो ब्लू होता है. पानी का रंग हम देखते हैं ब्लू कलर का दिखता है हमें. सो द सी इज ब्लू. ये वाला सी है, इसका मीन्स है देखना, और ये सी का मीन्स समुद्र. तो समुद्र है वो ब्लू कलर का है. द नेक्स्ट इज द डैश इज इन द स्काई. अब स्काई में क्या है? सन. ये सन का मतलब है या सन. ये सन है बेटा और ये सन क्या है? सूरज. तो स्काई में क्या होगा? दिस सन. ये सन we will write it here. The sun is in the sky. sun क्या है? जो सूरज है वो आकाश में है. next is ships dash on the sea. जो शिप हैं, जो जहाज हैं, वो सी पर हैं. क्या कर रहे हैं? सेल या सेल. सेल, इस सेल का मतलब है कुछ बिक्री हुई है, जो सेल हुई है. जैसे हम बोल देते हैं शॉप में इतना सेल हुआ है या कुछ सेल लगी है. और दिस सेल इज मतलब तैरना. तो क्या है? जो बोट हैं या शिप हैं वो सेल करती हैं पानी में. तो व्हाट विल बी द राइट वर्ड? दिस सेल. SAIL. सो आई हैव रिटन इट हेयर. शिप्स सेल ऑन द सी. नेक्स्ट इज आई हैव डैश पेंसिल. पेंसिल्स. मेरे पास पेंसिल्स हैं. TO2 या TWO2. ये बहुत मिसस्पेल्ड होता है. आप लोग इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं. सो व्हाट इज द राइट वर्ड? TWO2. 2 मतलब 2. ये 2 क्या होता है? दिस इज प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर वो यूज़ नहीं होगा. आई हैव 2 पेंसिल्स. मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं.
सो दिस वाज अबाउट होमोफोन एक्सरसाइज. हम इसी तरह के बहुत से होमोफोन्स अपनी कॉमन डे टू डे लाइफ में हम समझते हैं, देखते हैं. सो एक मैंने आपको फ्लाई और फ्लाई के बारे में बताया. इसी तरह बहुत से होमोफोन्स हैं. हम उनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज और करेंगे in our notebook. So now we will move to our next exercise. Yes students, this is exercise E on page number 21. So what is there in this exercise? Fill in the blanks with the correct words from the brackets. यानी brackets में some words are given, one is correct and one is wrong. तो जो correct word है हमें वो fill करना है space में. But before we start, I want to tell you कि any sentence is given to you when you are not able to read, आप उसको read नहीं कर पाएंगे तो it will be difficult for you to understand its meaning. आपके लिए उसका meaning समझना मुश्किल होगा. So make it a habit or make it a routine to read at least 10 sentences daily. आपको डेली 10 sentences का रीडिंग करना है. वो कोई भी हो सकते हैं, EVS या इंग्लिश. तो आप वो रीड करेंगे. जैसे जैसे आप रीड करेंगे आप उन सेंटेंसेस का मीनिंग समझ पाएंगे, वर्ड्स का मीनिंग समझ पाएंगे. और जब आपके पास कुछ नया वर्क आएगा या नया कुछ रीडिंग का मैटर आएगा तब भी आप एबल होंगे कि आप उन सेंटेंसेस को रीड करें, उनका मीनिंग समझ पाएं. सो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंसेस हमारे लिए न्यू है. दीज आर नॉट रिलेटेड टू अवर चैप्टर. ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. सो हाउ कैन वी जज? हम कैसे जज करेंगे कि इनमें से ये वर्ड राइट होगा या ये वर्ड राइट होगा? उसके लिए हमें रीड करना होगा. और जब हम रीड करेंगे और उन वर्ड्स को, मीनिंग को समझेंगे तभी हम इस एक्सरसाइज को या कोई भी एक्सरसाइज को कर पाएंगे. सो रीडिंग इज मस्ट. रीडिंग बहुत ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स मेक इट अ हैबिट. इसको हैबिट बना लें आप इसको एक रूटीन बना लें कि हमें 10 सेंटेंसेस पढ़ने हैं डिफरेंट. हर रोज एक ही तरह के 10 सेंटेंसेस नहीं, डिफरेंट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. E. Here what we have to do, we have to choose correct words and fill the space with the correct word. A mouse dash a lion in a net. एक चूहे एक शेर नेट में. अब आप कैसे समझेंगे? सॉ है, देखा, वॉज था. वॉज मतलब था, सॉ मतलब देखा. सी का पास्ट टेंस है सॉ. अ माउस सॉ अ लॉयन इन अ नेट. एक चूहे ने एक शेर को नेट में देखा. तो हमने सेंटेंस को रीड किया और यहाँ इन वर्ड्स के मीनिंग को हमने समझा. तब देन वी आर एबल टू फिल द करेक्ट वर्ड. नहीं तो हमारा वर्ड रॉन्ग हो जाएगा. एक चूहे ने एक लॉयन को नेट में देखा. नेट में जो पिंजरे में या जाल में वो फंसा हुआ था. यू नो अबाउट द स्टोरी. आपको स्टोरी पता होगी. नेक्स्ट इज डैश डिड द लॉयन से टू द माउस. अब लॉयन ने माउस को कहा. व्हाट डिड या हु डिड. व्हाट मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन. व्हाट मीन्स क्या, हु मतलब कौन. तो क्या कहा लॉयन ने माउस से. क्या कौन कहा लॉयन ने माउस से. व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट व्हाट इंस्टेड ऑफ हु. लॉयन ने माउस से क्या कहा. नेक्स्ट इज डैश इज रनिंग अप माई नोज. ऑप्शंस आर व्हेन और हु. व्हेन मतलब कब और हु मतलब कौन. व्हेन इज रनिंग अप माई नोज होगा राइट. कब मेरे नाक पर चल रहा है, या हु कौन मेरे नाक पर चल रहा है. सो द एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिटेड हेयर इज हु. कौन मेरे नाक के ऊपर कूद रहा है. ये माउस कूद रहा था लॉयन के नाक के ऊपर. नेक्स्ट इज लुक द माउस डैश सेट द लॉयन फ्री. हैज और हैव. अब हैज और हैव में क्या अर्थ है, ये एक ही तरह का मीनिंग कन्वे करते हैं. बट व्हेन थिंग्स आर, या नाउन जो हमारा सिंगुलर होता है तब हम हैज़ यूज़ करते हैं. और जब हमारा जो प्लूरल होता है देन वी यूज़ हैव. और आई और वी के साथ हम, और यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं. सो देखो माउस ने, माउस सिंगल है,
माउस ने लॉयन को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। आपको याद होगा वो स्टोरी, जब लॉयन माउस ने अपने टीथ से उस नेट को काट दिया था और लॉयन फ्री हो गया था। तो द माउस हैव सेट द लॉयन फ्री, नहीं, ये गलत होगा। द राइट इज द माउस हैज सेट द लॉयन फ्री। देखो, माउस ने लॉयन को फ्री कर दिया है। द नेक्स्ट इज द क्लाउड इज डैश अप इन द स्काई। ऑप्शंस आर माई और हाई। माई मतलब मेरा, हाई मतलब ऊंचा। अब क्लाउड क्या होता है? द क्लाउड इज माई अप इन द स्काई। इट विल बी राइट और नॉट? नो, इट विल बी रॉन्ग। सो द राइट वर्ड टू बी फिटेड हियर इज द क्लाउड इज हाई अप। क्लाउड कहाँ होता है? ऊंचा होता है, स्काई में होता है। द क्लाउड इज हाई अप इन द स्काई। सो हमारे को स्टूडेंट्स रीड करना और उन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, तभी हम उनका कनेक्शन बना पाएंगे। जो वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपको पता है कि कुछ वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका सेंस बने, बट उन वर्ड्स का कनेक्शन होना चाहिए आपस में, तभी हम एक सेंटेंस को रीड कर पाते हैं। सो जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, उतना हमारा ये चीज़ें क्लियर होंगी। हम नए नए वर्ड्स भी रीड करके उनका कनेक्शन बना सकते हैं। हमें एक दो वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे का नहीं पता होगा। हमें एक सेंटेंस में अगर 1 और 2 वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हम डिक्शनरी में से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेक इट अ प्रैक्टिस स्टूडेंट्स टू रीड एट लीस्ट 10 sentences daily, 10 different sentences, not same. So that's all for your classwork today. Now what is there in our homework, I want to tell you. Yes students, now about your homework. I am giving you 2 homeworks today students. First is to do this exercise F on page number 20, and then another one is a worksheet will be given to you. So I am going to discuss the homeworks. This is exercise F on page number 21. So you have to do this exercise as homework, and you have to write homework like that I have written here and today's date here. Now what is this exercise about? It is about circle the naming words in these sentences. इन sentences में naming words को circle करना है. You already know about naming words. आप naming words के बारे में जानते हैं. So I am going to read the rules. What are naming words? Words that name a person, a place, an animal or a thing are naming words. ऐसे words जो किसी person, place, animal या किसी चीज़ के बारे में बताएं, वो naming words होते हैं. They are called nouns. उनको nouns भी बोलते हैं. Example है mother, school, cow, stick. So mother is a person, place क्या है? school, animal है cow, and stick is the name of a thing. So ये है naming words. So you have to circle the naming words यहाँ पर इस exercise में. First one is already given as an example. So आपको ये circle करना है. This is your first homework and you will have to write homework here and today's date here. So you know about the naming words students. We had already done a whole chapter about naming words. So let's move to our next homework. Yes students, this is your second homework. It is a worksheet. The first homework was you have to do exercise F on page number 21 of your English Communicate book. Exercise F was about naming words. So this is the worksheet that you have to do as homework. What is there in this worksheet? I want to tell you. Exercise A, tick the things that can fly. Here some things are drawn. कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. आपको उन थिंग्स को टिक करना है जो फ्लाई कर सकती हैं. फ्लाई मतलब उड़ सकती हैं. स्पेस इज गिवन, वो आपको स्पेस भी दिया गया है. जो थिंग्स उड़ सकती हैं वहाँ आपको टिक करना है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी. दिस इज एक्सरसाइज बी. इट सेज सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स. हेयर वी आर गिवन सम सेट ऑफ वर्ड्स. हमें कुछ वर्ड्स के सेट दिए गए हैं जो हॉरिजॉन्टली हैं. हमें उनमें से जो ऑड वन है जो वर्ड, उसको सर्कल करना है. व्हाट इज ऑड वन? ऑड वन क्या होता है? जो बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड से थोड़ा सा, बाकी वर्ड्स के ग्रुप से थोड़ा हटकर हो, अलग हो. सो हियर यू कैन सी
गर्ल, बॉय, टेबल, मैन। टेबल विल बी द ऑड वन, उसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग, ये थिंग का नेम है, वेयर एज गर्ल, बॉय एंड मैन आर नेम ऑफ अ पर्सन। वो गर्ल, बॉय और मैन क्या है, पर्सन के नेम है, और टेबल क्या है, थिंग का नेम। सो उसी तरह से आपको बाकी सेट्स में भी ऑड वन सर्कल करना है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी। राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हिंट, लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। इन वर्ड्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या ABC ऑर्डर। हिंट क्लू दिया गया है, हमें हर वर्ड के, ईच वर्ड मतलब हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना है, उसको कंसिडर करते हुए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ABC ऑर्डर स्टूडेंट्स? डू यू रिमेंबर? वी हैड डन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन द ग्रामर चैप्टर, दैट वाज चैप्टर नंबर 1, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हमने ये उसमें किया था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स हैं, A से लेकर Z तक। So the A to Z of the alphabets are arranged in a particular order. उनको हम particular order में arrange करते हैं. This is called ABC order. Here you can see spoon, bag, glass और egg. ये we have been given 4 words. हमें 4 words दिए गए हैं और उनके नीचे 4 ही space हैं. What we have to do, हमें फर्स्ट लेटर को कंसीडर करना है। यहाँ स्पून के लिए S है, बैग के लिए B, ग्लास के लिए G एंड एग के लिए E। सो हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्कीम में A से Z तक कौन सा लेटर इनमें से फर्स्ट आता है। फर्स्ट पहले आता है, दैट इज B। B से स्टार्ट होने वाला वर्ड हम यहाँ लिखेंगे। देन S, G और E में से क्या पहले आएगा? E। सो वी विल राइट एग हेयर, क्योंकि E से ही स्टार्ट हो रहा है एग। देन G से ग्लास हो रहा है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और लास्ट में स्पून लिखेंगे, क्योंकि G के बाद आता है S, तो स्पून हम यहाँ लिखेंगे। सो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? बैग, एग, ग्लास एंड स्पून। सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। आपको ये इस तरह से करनी है। सो दिस इज़ द वर्कशीट दैट यू हैव टू डू एज होमवर्क. If you face any difficulty, if you don't understand anything, then you can call me or send me the message. So this was about your homework. Now what we have done in our English class today, students, first of all we have revised the test matter. जो हमने टेस्ट में करना है वो मैटर रिवाइज किया. Then we did exercise C, D and E of our lesson number 2, the fly. Then we have discussed the homework that you have to do during this week. So that's all for our English class today, students. We will meet in our next English class. Till then, students, take care. Bye bye. And do your test neatly and nicely.